Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce Section, Class 11, Subject Economics, Chapter 1, Introduction. Before this video, we talk about PPC Production Possibility Curve and how Production Possibility Curve help in what to produce and how to produce and for whom to be produced. In previous video, we see that PPC and what to produce. How PPC on the basis of production possibility curve we can solve the central problem first type, what to produce. In this video we see that how PPC can be solved the problem of how to produce. So first PPC and how to produce. As we know that there is two type of how to produce is the question of central problem, and there is two methods of production, labor intensive method and capital intensive method, and it is depends which method is appropriate for an economy or a producer. It always depends upon the factors of ability to that producer. If that producer has abundant quantity of labor, he must choose labor intensive technology, and if that producer has abundant quantity of capital, then he must choose capital intensive technologies. Here we see the picture of two PPC parallelly shifted one PPC, and as it is clear from figure that a shift from conventional to modern technology. Conventional technology is mostly labor intensive technology. ABPPC reflects the production efficiencies and utilization of resources when a producer adopt the conventional technology or labor intensive technology, and a shift from conventional to modern technology would lead to a upward shift in PPC or development or growth. So whenever there is adoption of modern technology or capital intensive technology at the place of conventional technology or labor intensive technology, there must be enhance in production, there must be enhance in the productivity of resources, and due to this our PPC gets shift outside or upward, which is clearly shown in this figure that while we adopting labor intensive technology, our PPC is AB, and when we shift from labor intensive technology or conventional technology to modern technology, our PPC is CD, and that is a upward shift in PPC, which states that now the productivity of our resources will get increased from point D to L. That is the impact and the problem of how to produce. The next question is PPC and for whom to be produced. देखिए हमने कहा था कि for whom to be produced and production is the only source. Production is the only source of income and employment. Thus we have to produce everything for every segment of the society. But what is the impact of on PPC of whom to be produced? देखिए जब समाज में दो स्थिति हो सकते हैं, और हमने ये भी कहा था कि प्रोडक्शन इज फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, और दोनों ही स्थिति में अगर इक्वल होगा तो फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत कम होगा. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसी इकोनॉमी में पुअर लोगों के यानी गरीब लोगों के पक्ष में है, असमानता बहुत कम है, तो वहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का दर बहुत कम होगा, और इस हिसाब से जो पूरे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी होगी रिसोर्सेज की वो कम होगी. और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होगा, यानी कि इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि पीपीसी व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच पर्सन, तो हमारा पीपीसी सीडी हो जाएगा, ये इनहेंस हो जाएगा
और हमारी रिसोर्सेज की जो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का, वो बढ़ जाएगा। और ए भी हमारा पीपीसी है, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर। तो ज्यादा समानता, आय वितरण में ज्यादा समानता हमको विकास के मामले में और हमारे रिसोर्स के डेवलपमेंट के मामले में हमको नीचे रखेगा, और आय वितरण में जो असमानता है वो हमको डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस में आगे ले जाएगा। ये बात थोड़ी सी विचित्र है कि अगर आय का वितरण बहुत समान हो अर्थव्यवस्था में, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि एक वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा उसकी आमदनी हो और दूसरा वर्ग जो है उससे आमदनी कम हो, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने पर जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है, पूंजी का जो संग्रहण है वो बढ़ता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इज अ बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इन द इकोनॉमी, एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है इकोनॉमी में वो एम्प्लॉयमेंट और आय का जरिया होता है अर्थव्यवस्था में। और एम्प्लॉयमेंट और आय का जरिया ही, जब एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगा इकोनॉमी में तो डेफिनेटली इकोनॉमी इंक्रीज करेगा, आवर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा डेवलपमेंट भी होगा। तो होम टू बी प्रोड्यूस, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, इसका क्वेश्चन का आंसर पीपीसी किस रूप में देता है, प्रोड्यूस फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द एवरी सोसाइटी। ये बात सही है यहाँ भी, लेकिन इतना ज्यादा दायरा प्रोडक्शन का बढ़ाने के लिए हमको ये ज्यादा जरूरी है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो अनइक्वल हो। अगला है पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीपीसी पर कोई भी पॉइंट जो है वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट और फुल यूटिलाइजेशन दर्शाता है, और पीपीसी के अंदर के जो भी बिंदु हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन और अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज दिखाते हैं। तो एवरी इकोनॉमी ट्राई टू गेट डेवलप इट्स रिसोर्सेज एट दैट लेवल वेदर दे कैन efficiently and fully utilize those resources for developmental process। तो ये जो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने पीपीसी को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है हमारा, ग्रोथ पॉसिबिलिटी जो है, तब तक हम उसको अपवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली डेवलप करके उनका फुल यूटिलाइजेशन इंश्योर नहीं करते हैं। अब है कि पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो है कि पीपीसी में वेन एवर देर इज, जब कभी अगर आपको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो आपको किसी न किसी रूप में और या हम ये कहें कि पीपीसी को आउटसाइड शिफ्ट करना है, डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए रिसोर्सेज को डेवलप होना होगा, रिसोर्सेज का पोटेंशियल यूटिलाइजेशन होना होगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उसका करना होगा। और इसके लिए कोई भी चीज जो है जो इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं अगर रिसोर्सेज में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आपका पीपीसी आउटसाइड शिफ्ट होगा, आपके पीपीसी में डेवलप होगा। जैसे क्लीन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, ये जितने भी मिशन है, या साक्षर भारत, तो या समृद्ध भारत का जो अभी चल रहा है मिशन, या आत्मनिर्भर भारत, तो इन सब मिशन का, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, समृद्ध भारत हो, स्वच्छ भारत हो, कौशल युक्त भारत हो, या मेक इन इंडिया हो, या डिजिटल इंडिया मिशन हो, इन सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिवली पड़ता है। और जब हम ऐसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं या इनटेक करते हैं तो आपका ग्रोथ, रिसोर्सेज के ग्रोथ होते हैं, उनके डेवलपमेंट होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप
आपका पीपीसी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो आउटसाइड शिफ्ट होता है, जो पूरे इकोनॉमी में एक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है. तो वेन एवर देयर इज ग्रोथ इन resources, whenever there is development in resources, whenever there is enhancement in technology, there must be efficient and fuller utilization of resources become possible, and on the basis of these our economy get developed, our production possibility will get developed, and due to this our PPC also gets shift outside or rightward, which indicate a clear development. So students, I hope you can understand these figures and the relationship of a central problem question with PPC and how PPC helpful to solve those questions. You must have to write down this in your homework notebook and also remember and practice of graph and remember it for exam purpose. Till then, bye, take care.